Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. Today I am here with a very important writer of English literature, that is Joseph Addison, and this will be the last writer of Augustan age, and with that we will complete all the writers of Augustan age according to our master cadre syllabus of Punjab. So if there is any query about Augustan age, about any writer, just leave your comment in my comment box. So let's get started with Joseph Addison, a very important writer of Augustan age. So let's begin with a very important quote by Joseph Addison, that is, reading is to the mind what exercise is to the body. कि जो एक्सरसाइज के लिए, जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसी तरह माइंड के लिए रीडिंग ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है. पढ़ना जो है वो एक माइंड की एक्सरसाइज है. सो Joseph Addison was born in 1672. He was born in 1672 and he died in 1719. Joseph Addison was an essayist, he was a poet, playwright, and he was also a politician. वो politician भी थे. And a very important point about Joseph Addison is he was the founder of Kit Kat Club. He was also the founder of Kit Kat Club. And next point is the very important work by Joseph Addison is the poem of Revik. You must remember the name of the works and the year in which they are published. And if there is any point which is important from the work, we will do it. So the poem of Revik, it was a Latin poem. ये एक Latin poem है and it was published in 1693. Next is Account of the Greatest English Poets. Account of the Greatest English Poets. It was also published in 1693. Next is Cato, a Tragedy, very very important work by Joseph Addison. It was published in 1712 and it was a masterpiece by Addison. एंड जो पोलिटिकल ग्रुप्स थे, पोलिटिकल फैक्शंस थे इंग्लैंड में, दैट इज़ विग्स एंड टोरीज, उन्होंने भी इसके वर्क को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया. और इसी अप्रिसिएशन के बाद, इतना ज़्यादा उनको अप्रिसिएशन मिलने के बाद, उन्होंने एक और वर्क लिख दिया, दैट इज़ द ड्रमर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1760 एंड इट वॉज अ कॉमेडी प्ले. नेक्स्ट इज रिमार्क्स ऑन इटली. This was also a work by Joseph Addison. Next is very very important. Joseph Addison also translated Virgil's Georgics. It is Georgics, not Georgics. 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 ये Georgics जो है ये वर्जिल के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जिसको ट्रांसलेट किया गया एडिसन के द्वारा. नेक्स्ट इज द फ्री होल्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो द फ्री होल्डर है ये एक सीरीज ऑफ पेपर्स है जो 1715 to 16 में लिखी गई और ये लास्ट पब्लिकेशन है बाय जोसेफ एडिसन. जैसे उनका जो ग्रुप था, उनका जो क्लब था किटकैट क्लब, उसी के अंडर ये सब चल रहा था. द फ्री होल्डर, द स्पेक्टेटर, सो दीज द गार्डियन, द टैटलर, ये जो पैम्फलेट्स, ये जो सीरीज़ लिखी जा रही थी ये किटकैट क्लब के अंडर लिखी जा रही थी. So the next is the Old Whig. Old Whig is a very important work. Why it is important? Because this is the last work by Joseph Addison and it was published in 1719. Next very important point is he also contributed 42 essays. He contributed 42 essays to the Tatler by Richard Steele. कौन कौन किसने कंट्रीब्यूट किया? द टैटलर जो एक मैगज़ीन थी जो 1709 में लिखनी शुरू की गई, उसके अंदर रिचर्ड स्टील ने 42 एसेस को कंट्रीब्यूट किया. रिचर्ड स्टील ने, जो कि जोसेफ एडिसन के बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड थे. नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द स्पेक्टेटर. ये जो स्पेक्टेटर है इट इज़ अ डेली पब्लिकेशन जो एडिसन एंड स्टील दोनों ने फाउंड की. इसके स्पेक्टेटर के अंदर 555 इश्यूज़ को पब्लिश किया गया. टोटल इसके अंदर 635 एसेस थे.
नेक्स्ट पॉइंट इज डायलॉग ऑन मॉडल्स। डायलॉग ऑन मॉडल्स ये इनकम्प्लीट वर्क है बाय जोसेफ एडिसन। नेक्स्ट इज द कैंपेन, very important poem by Edison because it celebrates the victory of Blenheim। ये जो विक्ट्री ऑफ ब्लेनहेम जो वॉर हुई थी, गवर्नमेंट ने एडिसन को बोला था कि इसके ऊपर एक पोएम लिखी जाए, तो दैट्स वाई जोसेफ एडिसन ने द कैंपेन पोएम जो है लिखी टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ ब्लेनहेम। नेक्स्ट इज of the Christian religion again is an incomplete work by Joseph Addison। so dialogue on models and of the Christian religion ये दोनों incomplete work हैं। next is हाइम। जो हाइम है the spacious firmament on high, the spacious firmament on high, ये द स्पेक्टेटर में ही पब्लिश की गई थी 1712 में। 1712 में जो द स्पेक्टेटर है डेली पब्लिकेशन, उसके अंदर ये हाइम जो थी ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज द गार्डियन। जो ये द गार्डियन था ये अगेन किटकैट क्लब के अंडर लिखा गया था। ये इसकी जो पब्लिकेशन थी 1713 में स्टार्ट हो गया था, मतलब ये एक सीरीज़ थी चलती रहती थी जो 1713 में स्टार्ट हो चुका था। एक अगेन द टैटलर है जो कि अगेन एक सीरीज़ है, दैट इज़ द टैटलर। ये किटकैट क्लब के अंडर ही था और ये 1709 में इसको लिखना शुरू किया गया था। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट जोसेफ एडिसन एंड दिस विल बी ऑल। ये सारा जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा इम्पॉर्टेंट ही आपको दिया गया है। सो इफ़ देर इज़ अगेन एनी क्वेरी जस्ट टेल मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। So thank you very much. Stay safe and stay healthy.